Hello बच्चों, so welcome back. So this is the last video regarding the previous year question of gravitation. So let's get started. So the first question in this series is distance of two planets from sun are given to be this as well as this. The ratio of time period will be what? So students, it will be simply we know we'll use Kepler's law that is T square is directly proportional to R का cube. जब भी टाइम पीरियड और डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स दे रखे यूजुअली यू यूज दिस फॉर्मूला ओनली टी स्क्वायर दैट इज वी आर टेकिंग T1 का स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब R2 का क्यूब. हमने क्या किया है दैट इज टेकिंग रेशियो ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स. सो डिस्टेंस गिवन है तो ये बन जाएगा T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर R1 बन जाएगा दैट इज 10 की पावर 13 का क्यूब एंड R2 बन जाएगा 10 की पावर 12 का क्यूब. सो सिंपली वी गॉट T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 raised to power cube. Now simply we can write it as T1 by T2 is equals to 10 की power 3 by 2. Simply students T1 by T2 will become that is 10 root 10 की power 3 that is 10 root 2 divided by 1. So you'll get this answer. That is option number second. Let's move to the next. The radius of Earth is given to be this, and radius of Earth is this, radius of Mars is this. Mass of Earth is about 10 times the mass of Mars. If object weight 200 on the surface of Earth, it will weight on the this. Students, so in this, whenever the weight arrives, you have to do that is, students, okay, so we were on this question that is radius of Earth is given to be this and mass of this. So can I write that radius of Earth is simply twice the radius of Mars and that of Mars, radius of Mars. Okay, mass of Earth is about 10 times the mass of Mars. That is, this is given to be okay. Next thing is given an object weight 200 on the surface of Earth. Surface of Earth means weight is 200 Newton and that is equals to m into g. Okay, now we need to calculate the weight on Mars. That is, weight on Mars will be simply m into g dash. Students, look, the mass term is constant. यानी जो change आएगा that is in g dash. That is acceleration due to gravity at that planet. So what we are going to do, we are going to find acceleration due to gravity on that planet. That will be simply g dash is equals to g into mass of that planet. Here in this case, we'll use the mass of Mars divided by r square, that is Mars planet ka radius. So we'll get g dash is equals to simply g into mass of Mars will be 10 time of mass of the mass of Earth is about 10 times that of. So simply it will become mass of Earth divided by 10 and radius of Mars will be students. So radius of Mars will be simply radius of Earth divided by 2 ka square. So you will get g dash value to be g into mass divided by re ka square 1 by 10 into 4. So it will simply become that is g dash is simply 2 by 5 of g, 2 by 5 of acceleration due to gravity on Earth. You need to calculate for the w dash. So it will become w dash by w is equals to mg dash by mg. मैंने दोनों के वेट को डिवाइड कर दिया. रेशियो इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू सॉल्व टू क्वेश्चंस. मास से मास कैंसिल. w dash by w is equals to g dash की वैल्यू है सिंपली 2 by 5. तो यू कैन टेक इट एज W की जगह मैं लिख रही हूँ weight of planet on earth, तो it is 200, it is already given, so you'll get simply as students it will become 80 Newton. So your answer is 80 Newton. I hope it is clear to you. Next, the earth revolves around the sun with an angular velocity omega is given to you. Okay, circular orbit में घूम रही है जिसका आपको radius भी mentioned है. Force exerted by sun of earth. Students, so the force exerted by sun on earth is given by this is sun
and this is our earth which is revolving around this. So students, जब भी कोई चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में है, we know that the force governing it is centripetal force. जो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो वी कैन क्लियरली स्टेट यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन में होने के लिए we need a centripetal force. Centripetal force is given as mv square by r, or can be written as m omega square r, which is given by, कौन दे रहा है इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट इज स्टूडेंट्स, यू विल राइट इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय सन एंड अर्थ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशन. इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. Students, so we'll simply write m omega square by r. Why I'm writing this? Because यहाँ पे मुझे omega सारे टर्म्स मेंशन्ड है, सो इट इज बेटर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला यूज करें, इज इक्वल्स टू g into mass of earth into mass of the sun divided by r square. You can simply get it as, if this is mass of earth, these terms get cancelled. Okay, the force is asked, simply the force is asked. So we can simply, we need to calculate the force, that is force is simply the centripetal force me into omega square r. Mass of earth is given to be 6 into 10 की power 24. Omega will come out to be 2 into 10 की power minus 7. Since the square term is given 2 into 10 की power 7 into the radius 1.5 into 10 की power 8 kilometers. So writing it in meters, so it will become 1000. So when we'll solve, we'll get the answer to be Fe value to be we'll get it out to be 36. The force will come out to be 36 into 10 की power 21. I hope students this is clear to you. Next question. In this, two particles are moving in a circle under the action of the mutual gravitation attraction. The speed of the particle is given out to be, again, this question is very important. टू मासेस गो अराउंड द सर्कल. दो मासेस हैं जो कि एक रेडियस है सर्कल का आर, उसके अबाउट ऐसे घूम रहे हैं, एंड दे आर they are rotating under their mutual gravitation attraction. So you say the mutual attraction is given out to be uh, that is, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, वी नो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का टर्म आना ही आना है, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू, कौन दे रहा है इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट इज जी m1 m2 by r square. That is the gravitation, that is the centripetal force between these two is given by the gravitation force between two masses, that is their attraction. So what we'll write, since the both bodies have same mass, so can I write it as to be g m by r square? This r term will get cancelled, m term will get cancelled. We'll write v is equals to under root g m by r. We'll get out to be g m by r. Students, in this we can write एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, दैट इज इन दोनों के बीच में जो मास है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv square by r. Okay, now what is the gravitation force between these two? So we'll say g m into m by इनके बीच की कितनी दूरी है, दैट इज 2r का स्क्वायर. you'll get 4r का स्क्वायर. So you'll get 4 का term here. When you take the term common, you'll simply get v is equals to 1 by 2 under root g m by r. We took this because the distance between these two forces is m, और m के बीच की जो दूरी है, that can be written as 2r. Okay students, so the correct answer to this question is option number 4. Let's move to the next. Acceleration due to gravity, mean density, g and r. We need a relation between all these. So we can simply write g के बीच में relation चाहिए. सबसे पहले हमने g का formula लिखा, that is g m by r square. Since we want the formula to come in terms of rho, so we can simply use that rho is equals to mass by the volume. Rho is the mass density, ऊपर लिखा mass, नीचे लिखा the volume, that is simply as 4 by 3 pi r cube. आपने लिखा mass by density 4 by 3 pi r cube. Since we want कि mass की टर्म पे है, तो mass एक तरफ, density का टर्म एक तरफ, it will become
रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आपने मास का टर्म लिया है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये जो मास का टर्म है विल सिंपली पुट इन दिस इक्वेशन। G is equals to G into mass के टर्म पे we are writing 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सिंपली G का टर्म बन जाएगा दैट इज 4/3 पाई r rho into G. Now we need the rho ka term, that is density in terms of all these parameters. So you write density ek taraf, it will become 3G by 4 pi r capital G. So accordingly, the correct answer to this question is option number 1. I hope students it is clear to you. Next, what is the formula of mass of Earth in terms of this? We know that G can be written, that is acceleration due to gravity can be written as G into the mass of Earth. If we are taking G acceleration due to gravity, so we write mass of Earth divided by radius square of Earth. Since we need to calculate mass of Earth का फॉर्मूला चाहिए, तो we simply wrote mass of Earth एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, ये बन जाएगा G into R square of Earth divided by capital G. So simply students you can write this formula to be option number 2. I hope it is clear to you. Next, period of revolution of planet around the sun is 8 times that of Earth. And it is given the period of revolution T of A around sun is 8 times that of B. Okay, we are given two planets simply. एक planet का revolution 8 times of B. The distance of A from sun is how many times greater than that of B? Distance of A from this is given out to be distance of A कितना बड़ा है as compared to B. यानी ये जो term है RA that will calculate कितना बड़ा है from B term. Students in this ये नहीं पूछा RA कितना है या RB कितना है. In this it is asked RA कितना बड़ा है. So simply you wrote it as TA by TB का square is equals to RA by RB का cube. तो आपने देखा टाइम पीरियड इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर, तो ये बन जाएगा 8 ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बी बाय टाइम पीरियड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी का क्यूब. सिंपली टी बी टर्म्स गेट कैंसिल, इट विल बिकम 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी का क्यूब. So students we can simply when will open, ये बन जाएगा 64 बाय आर ए बाय आर बी का क्यूब. जब आप देखोगे इसको ओपन करोगे 8 का स्क्वायर है 64, यू राइट इट एज सिंपली 4. ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी, दैट इज मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिए. ये बन जाएगा आर ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर बी. नाउ हमें जाना है आर ए कितना बड़ा है आर बी से. सो हमने सिंपली किया आर ए माइनस आर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 टाइम्स ऑफ आर बी माइनस आर बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स. तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स है 3 गुना बड़ा है. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली option number 4. Okay, so the next question is, in this we need to calculate escape velocity is given out to be this. Escape velocity students under root 2gm by r, mass है उस planet का divided by radius. If the earth mass increases to twice the present value, जो mass of earth है that get out to be twice of present value, that is mass of planet, and radius become half, यानी जो भी if the earth mass increases to twice its present value, that is new mass of earth is 2 times the mass of previous earth, and radius of earth become half, यानी new radius of earth is simply the radius of earth previous radius of earth का half. escape velocity कितनी हो जाएगी students? सो हेयर द टर्म आप देख सकते हो v एस्केप का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या फॉर्मूला है, दैट इज 2 इंटू जी मास ऑफ अर्थ, दैट इज नया मास ऑफ प्लेनेट क्या आपने बोला ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, तो आप नीचे लिखोगे रेडियस,
नया रेडियस क्या है, सिंपली पुराने वाले रेडियस का आधा। तो आपने देखा 2 का टर्म विल गेट कैंसिल, इट विल बिकम √2 g इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हो यहां से मिल जाएगा, दिस टर्म विल गेट आउट to be V escape. Simply, you can write it as V escape is equals to √2 times the V escape. That is the new escape velocity is simply √2 times of this. Okay, okay, students. So in this actually एक mistake हुई है, that is this 2, ये जो 2 है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो it will come out to be here. Okay, students, it will come out to be here, so it will become 4. It will come out to be 4. That is, you'll write जब 2 और 2 से कैंसिल नहीं होंगे, instead students they'll get multiplied. Okay, so it will get multiplied. The formula will become this. So again, this term will become 2 into V escape. That is, ये पूरा टर्म तो बन जाएगा स्टूडेंट V escape, और ये √4 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2. तो we will write V escape, new V escape is simply twice of the V escape on earth, that is 11.2 kilometer per second. So it will become simply, that is 22.4 kilometer per second. I hope students it is clear to you. Let's move to the next question. A body weighs 72 on the surface of Earth at a height half of radius of Earth, then gravitation force exerted by this. एक वोट है, एक body that weighs 72 Newton moves from Earth. यानी weight is equals to 72 is equals to mg from the surface of Earth. Moves from the surface of Earth at a height half of radius of Earth. कहाँ move कर रही है? At a height half of radius of Earth. Then the gravitation force exerted on it will be. Students, so since this is moving to some height, to this height, so we'll say जो चेंज आएगा बॉडी में दैट इज गिवन बाय रेडियस, मतलब जी में चेंज हो जाएगा, जी डैश में चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम Gm/r². सिंपली जी में चेंज आएगा दैट विल बिकम, वी नो जी में कितना चेंज आता है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम किसी हाइट पे जाते हैं तो हाउ मच चेंज वी गेट इज जी डैश इज इक्वल्स टू G1 प्लस h/r का स्क्वायर. दैट इज एक हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे जी डैश की वैल्यू इज इक्वल टू G1 प्लस h/r का स्क्वायर. तो आपने सिंपली लिखा G1 प्लस h/, आप बोल रहा है हाइट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट जा रहा है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैंने लिखा h की जगह लिखा r/2, नीचे डिवाइड किया r, r से r कैंसिल, ये बन जाएगा G डैश इज इक्वल्स टू G acceleration due to gravity on earth divided by 1 plus 1/2 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स G बाय, ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा G डैश इज इक्वल्स टू सिंपली G, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये बन जाएगा 4. Now it is given कि weight is 72 on surface of earth, that is weight is equals to 72 is equals to mg. अब आपसे पूछ रहा है किसी और जगह पे क्या होगा, w डैश इज गिवन बाय m इंटू उस पॉइंट पे g डैश की वैल्यू. तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम 72 बाय w डैश इज इक्वल्स टू g बाय g डैश. तो आपने देखा 72 बाय डब्ल्यू डैश, हमें डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकालनी है. दिस इज सिंपली, अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन रखूंगी दैट इज वी गॉट विल बी 4g/9 इंटू जी से जी कैंसिल, 9 8 जा, इट विल बिकम simply w dash is 8 4 ja 32 Newton. So students, the correct answer to this question is 32 Newton. Let's move to the next. A planet of mass equal to mass of Earth but radius is different, तो escape velocity कितना होगा students? So it is V escape is simply under root 2 Gm by r. क्वेश्चन में गिवन है मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ,
यानी दोनों का मास बराबर, बट रेडियस 1/4 टाइम्स है. सो यू विल राइट वी एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g मास इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ. तो आपने मास की जगह सिंपली यही लिखा, दैट इज न्यू एस्केप वेलोसिटी इज मास ऑफ अर्थ, यही आएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज सिंपली आर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 1/4. तो आपने देखा वी एस्केप, न्यू वी एस्केप डैश इज इक्वल्स टू 2gm/r, 4 का टर्म ऊपर आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी दिस. आपने सिंपली लिखा. बाकी दिस टर्म स्टूडेंट्स, ये जो ये वाला टर्म है दैट इज सिंपली द वी एस्केप ऑफ द अर्थ, जो इनिशियली है, जो आपको निकालना है वी एस्केप, फाइनल वी एस्केप ऑफ द अर्थ इनटू ट्वाइस 2, क्योंकि √4 को जब आप बाहर निकालोगे इट गेट आउट टू बी 2. तो वी एस्केप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? वी एस्केप डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस्केप वेलोसिटी कितनी? 11.2. तो सिंपली हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड. So the correct answer is option number second. Let's move to the next students. What is the velocity height becomes the radius of Earth? In this question, it is given. In this question, it is given. With what velocity should a particle be projected? Should a particle be projected so that its heights become equal to radius of Earth? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से अगर मैं पार्टिकल को फेंकूं, ठीक है, तो किस वेलोसिटी से फेंकूं कि यहाँ तक हाइट इक्वल्स, यहाँ पे मतलब आर रेडियस के एक प्लेनेट से अर्थ से हम फेंक रहे हैं, ऐसा किस वेलोसिटी से फेंकूं कि ऊपर जाए आर रेडियस तक बॉडी ऊपर जाए. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, बेस्ट अप्रोच इज एनर्जी कंजर्वेशन. मैंने लिखा एनर्जी एट 1 शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट 2. नाउ व्हाट इज एनर्जी एट 1? आपने लिखा स्टूडेंट्स, आपने बोला एनर्जी एट 1 विल बी सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 will be equal to kinetic energy plus potential energy at 2. So what is the kinetic energy and potential energy at 1? तो आपने बोला kinetic energy हो जाएगी हाफ mv², उसे जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आप बोलोगे माइनस gm/radius of earth. दैट इज इस पॉइंट पे मैंने एनर्जी लिखी है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू व्हाट विल बी द एनर्जी एट द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे क्या होगी? आपने बोला एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, क्योंकि स्टूडेंट्स वो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका है. मैक्सिमम हाइट तभी होती है जब उस पॉइंट पे 0 वेलोसिटी हो, तभी उस पॉइंट पे आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम हाइट, दैट इज वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस gmm कितनी ऊपर जा रहा है? आर प्लस आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आपने देखा हाफ mv² इज इक्वल्स टू माइनस gmm/2r प्लस gm/r. तो आपने लिखा हाफ mv² इज इक्वल्स टू gmm/r, कॉमन ले आ जाएंगे, gmm/r, here this m will also come, so it will become gmm/r by common, rest में बच जाएगा हाफ. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने देखा you need to calculate the velocity, m term will get cancelled, this term will get cancelled, the term which is left is v is equals to under root g into mass of the earth divided by the radius of the earth. So the students correct answer to the question is question number 60, question number and option number first. Let's move to the next. A body is placed on Earth's surface. It is asked what is the change in the gravitational energy. Students, so it is given a body of mass is placed on Earth's surface. Initially, its energy will be minus gmm/r, क्योंकि वो surface of Earth पे थी. When it is taken to a height, that is final height is 3r height पे लेके जा रहे हैं, तो it will become minus gmm. Next height कितनी है? To a height equal to, student it is given अर्थ से ऊपर हाइट जा रहा है 3r, तो सेंटर ऑफ ऑल से कितनी दूरी होगी? आप बोलोगे r प्लस 3r, कितना हो जाएगा? 4r, तो ये बन जाएगा माइनस gmm/4r. चेंज कितना हो जाएगा? चेंज हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल. फाइनल कितना है? माइनस gmm/4r
माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर। स्टूडेंट्स इट विल बिकम माइनस जी एम एम बाई 4r प्लस जी एम एम बाई आर। आप सिंपली बाकी सारी टर्म्स कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा जी एम एम बाई आर, यहाँ पे बन जाएगा -1/4 + 1। इट विल बिकम जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू 3/4। स्टूडेंट्स आप इसी में यूज कर सकते हो जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर। जैसे ही आप इसको इसमें पुट करोगे यू विल गेट द आंसर इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वी डिड दिस, हमने जी के टर्म्स में लिखा बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स कि जो भी ऑप्शन आए वो स्मॉल जी के टर्म्स में आए, दैट इज व्हाई वी रोट दिस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Acceleration due to gravity is 9 times the acceleration due to, it is given students, acceleration of A is simply 9 times the acceleration of B. क्वेश्चन में बोला है एक मैन जंप्स टू हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। एक आदमी है वो 2 मीटर चला ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो कैलकुलेट वो उसी वही आदमी कितनी हाइट पे जाएगा अगर वो बी प्लेनेट पे होगा। सिंपली स्टूडेंट्स वी इन दिस चैप्टर विल यूज काइनेमेटिक्स प्लस ग्रेविटेशन। देखो मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है वो यहां से उछला, वो 2 मीटर तक उछल के गया। ओके, तो मैंने क्या बोला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी ऑन ए का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन एस। स्टूडेंट्स, तो कोई भी चीज अगर उछलती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, आप बोलोगे जब वो उछल के पोजीशन पे पहुंच गई फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस किस इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसे ड्रॉप किया था, यू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ए का क्या होगा, दैट इज ए, लेट अस सपोज मैं ए ही लिख रही हूँ यहाँ पे, इंटू कितनी दूरी मूव की, तो स्टूडेंट्स यू विल सिंपली राइट उसने 4 मीटर मूव किया, तो इट विल बिकम दैट इज यू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into acceleration of A. This is the first equation we got from the equation given data. Next, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा अगर वो बी पे जाता है। स्टूडेंट्स अगेन सो व्हाट आई एम राइटिंग, वी बी का स्क्वायर माइनस यू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी इंटू एस। सारे टर्म्स मैंने किसके यूज किए स्टूडेंट्स, अब मैंने यूज किए बी के, तो ये कितने बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बी के लिए, आप बोलोगे 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज यू बी, दैट इज क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों को सेम ही वेलोसिटी से फेंका गया है, सेम ही वेलोसिटी से फेंका गया है, बस कंडीशन अलग है कि वो एक ए प्लेनेट पे है एक बी प्लेनेट पे, एक के पास एक्सेलरेशन ए की होगी एक के पास एक्सेलरेशन बी की होगी, तो इट विल बिकम 2 into acceleration of b का क्या है स्टूडेंट्स, इट विल बिकम acceleration of a by 9 into कितनी दूरी गया ये कैलकुलेट करना है। सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यूज बोथ इक्वेशंस, सो इट विल बिकम यू ए किसके जगह की यूज किया मैंने, 8 of a is equals to 2 into a of a divided by 9 into displacement by b। आप यहां से देखोगे ये बन जाएगा सिंपली, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से आप देखोगे इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे दिस टर्म विल गेट, ओके सो 2 term is coming here, 8a, ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया था, यहाँ पे एक्चुअली में 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, दिस टर्म विल बी 4, क्योंकि कितना मूव किया है वो एस ए प्लेनेट पे, तो इट इज गिवन 2 मीटर, बाय मिस्टेकनली आई रोट 4, तो इट इज गिवन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, तो आपने क्या किया यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 4, और जब आप इसको कैंसिल करोगे बन जाएगा 2,
तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द बी प्लैनेट इज सिंपली 18 मीटर. Okay, students. So the option to this is option number second. Two spheres are situated in air. Gravitation force between them is F. अगर मैं उन दोनों दो मासेस है, एक का मास है m, एक का मास है कैपिटल M. स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में जो दूरी है उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है F फोर्स एक्सर्टेड है. अब मैं बीच का जो फोर्स है, बीच का जो मीडियम है, उसमें एक लिक्विड फिल कर रही हूँ, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम बिटवीन देम. आप बीच में कुछ भी डाल दो, दो बॉडीज जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, फाइनली भी उसी फोर्स से ही अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स. और इसमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है, अगर मैं उसमें एक और बॉडी ले आऊं, बीच में एक और बॉडी ले आऊं, तो उसके उससे भी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी वो उतना ही फोर्स इंटरैक्ट करेंगे. So the answer to this is option number second. Let's move to the next. The density of newly discovered planet is twice of that of Earth. That is, rho density of the planet. Rho of the planet is rho of the planet is twice that of rho of Earth. Okay. Acceleration due to gravity at the surface of planet is equals to surface of Earth. यानी acceleration due to gravity की जो भी वैल्यू होगी इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ की है वही उस प्लेनेट की होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, देन रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना होगा, उस प्लेनेट पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या यूज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता लगाई, दैट इज रूट जी एम बाई आर का स्क्वायर. आपसे बोला हुआ है दोनों का सेम है, तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ. प्लेनेट की जगह मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर, नीचे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर. दिस इज फॉर प्लेनेट एंड दिस इज फॉर अर्थ. कैपिटल जी विल गेट कैंसिल. यहाँ पे आप लिखोगे मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस प्लेनेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट, दैट इज रेडियस. यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स अर्थ, यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. जब आप इसे ओपन करोगे ये बन जाएगा मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस स्क्वायर ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस अर्थ का स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन. अच्छा, इन द क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपको मास की जगह डेंसिटी के टर्म्स गिवन. सो स्टूडेंट्स, मैं मास को कैसे लिख सकती हूँ, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब. दैट इज, मैंने क्या किया, मैंने मास की टर्म को हटा के यहाँ पे डेंसिटी का लिख दिया 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस टर्म विल गेट कैंसिल, दिस टर्म विल गेट कैंसिल, दिस होल टर्म विल गेट कैंसिल. यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्यूब इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब. क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी दोगुनी है, ट्वाइस, यू राइट ट्वाइस रेडियस. रेडियस की वैल्यू आपको पता लगानी है, इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा रेडियस का स्क्वायर दैट इज आर आर. तो बन जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ. तो आपने देखा स्टूडेंट्स ये टर्म गेट कैंसिल, आर रेडियस और इनका रेशियो हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज 1/2. तो आप स्टूडेंट्स, द ऑप्शन टू दिस इज ऑप्शन नंबर 4. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अ बॉल इज ड्रॉप टू अ स्पेसक्राफ्ट डिस्क. एक बॉल है, एक स्पेसशिप है स्टूडेंट्स. स्पेसशिप कॉन्स्टेंटली चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ दिस. ठीक है, आप ऐसे आप मान सकते हो कि यहाँ पे हमारा सन या जो भी हमारी अर्थ है, अर्थ के अबाउट घूम रही है, अर्थ के अबाउट स्पेसशिप चल रही है. क्वेश्चन में बोला है कि अगर उससे मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकूंगी तो उस ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगी. स्टूडेंट्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रही है, अगर वो एक पाथ में फॉलो कर रही है, तो आप कहोगे
कि वो एक ऑर्बिटल स्पीड है स्टूडेंट्स उसके पास, उसने इस ऑर्बिटल स्पीड को मेंटेन कर रखा है और इस ऑर्बिटल स्पीड से वो घूम रही है, जो कि इसे मिल रहा है बाय ग्रेविटेशन फोर्स, और इसे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत नहीं, वो इसी फोर्स से थ्रू आउट मूव करती रहेगी। ओके ना, अगर इससे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो भी करती हूँ, लेट अस सपोज मैंने एक बॉल को थ्रो किया स्टूडेंट, तो ये जो बॉल है इसके पास शुरू में ऑर्बिटल स्पीड ही होगी, दैट इज जो स्पीड सैटेलाइट की शुरू में थी वही स्पीड बॉल की रहेगी। तो वो जो बॉल है उसके पास भी सेम ही वेलोसिटी होगी, यानी सेम ही ऑर्बिटल स्पीड होगी। अब सेम ऑर्बिटल स्पीड, सिंस उस बॉडी को ऑर्बिटल स्पीड मिल चुकी है, तो वो गोल गोल घूमेगी इन द ऑर्बिटल स्पीड ओनली, यानी उस बॉडी के पास ऑलरेडी ऑर्बिटल स्पीड है, तो वो ऑलरेडी उसी पाथ में मेंटेन रहेगी, वो बाहर डिफ्लेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑर्बिटल स्पीड है। So students, it will answer to this is it will move in the same path, same speed और उसी path में move करेगी. So by this students, we complete the previous year NEET question series. अब हमने सारे 71 previous year NEET questions कर लिए हैं of gravitation. I hope you will find this helpful. Thank you students.